Important terms which were used by Mendel in genetics. First, gene and factors. Mendel did not know about the genes. He used word factor. Factor are specific chemical substances which are very responsible or expression of the genetical characters. Generation to the next generation, from parents to their offsprings. Right. Allele. Allele is the components of genes. Each genes have two components. That's called allele. Right. जीन्स को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? कैरेक्टर्स वाइज, ट्रैक्स वाइज भी देखा जाए, टॉल का जीन ये होता है, ड्वार्फ का जीन ये होता है, राउंड का जीन ये होता है, रिंकल्ड का जीन ये होता है. उसी तरह से कलर की बात करें, सीड कलर का, पाइसम सटावम सीड के कलर का, येलो के लिए ये जीन होता है, ग्रीन के लिए दिस इज द जीन. You can see here each factor or gene have two components. हर जीन में दो components हैं. That components called allele. That's called allele. So this is allele, this one allele, this one allele, this one, and this one. Chromosomes. Chromosomes are vector of genes, are responsible to carry the genetical characters or factors from generation to the next generation. Factors और genes are unit of genetics. Unit को carry कौन करेगा? Chromosomes. Small fragments of DNA, the specific sequence of DNA, that called chromosomes. Genotype, the genetical expression of any tract. Genetical expression of any tract. Tall का genetical expression genes के थ्रू किया जाएगा. तो ये genetical expression क्या हुआ? Capital T, capital T. In the other hand, capital T, small t. This is also genotype of the top, genotype of the tract. Right. Next, dwarf. Dwarf का genotype genes को indicate करते हुए होगा this one. So these are showing your genes. So representation or expression of genetical characters, that called genotype. Phenotype, expression of any physical characters or traits. Expression of any physical traits means tall, short, dwarf, round, wrinkled. This is only a physical expression of any trait. कोई प्लांट लंबा है, प्योर है, इम्प्योर है, that is another thing. Doesn't matter here. Plant is tall, round है, प्योर है या इम्प्योर है, doesn't matter here. प्योर इम्प्योर की बात करते हैं तो this is called pure. क्यों? क्योंकि हमें जीन्स का मालूम है, जीन्स के एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे हैं. This is tall, impure tall. This is dwarf, pure dwarf. But in the case of physical expression of any tract, हम tall बोलेंगे, pure बोलेंगे, impure बोलेंगे नहीं, tall बोलेंगे, dwarf बोलेंगे, round बोलेंगे. Dominant alleles, यहां देख सकते हैं आप, dominant alleles. हर एक जीन के दो कंपोनेंट्स है, या तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए या फिर ये स्मॉल में लिखा जाए, कैपिटल लेटर्स या स्मॉल में लिखा जाए. डोमिनेंट एलिमेंट्स मीन्स द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर विच ऑलवेज एक्सप्रेस इवन इन इम्प्योर कंडीशन. किसी भी जीन का एलीली
जो इम्प्योर पोजीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट कॉल्ड डोमिनेंट एलील। और डोमिनेंट एलील को किस तरह से शो किया जाता है? डोमिनेंट एलील को ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में इंडिकेट किया जाता है। तो दिस इज डोमिनेंट एलील ऑफ टॉल, दिस इज डोमिनेंट एलील ऑफ येलो, दिस इज डोमिनेंट एलील ऑफ राउंड शेप ऑफ सीड। रिसेसिव एलील की बात करें, recessive allele, the component of factor which never express, only express in a pure condition। recessive alleles को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, यहां देख रहे हैं आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला स्मॉल लेटर्स में इंडिकेट कर रहा है किसी भी जीन्स के ट्रैक को, एलीली है। तो रिसेसिव एलील स्मॉल लेटर्स में इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल टी। सो डोमिनेंट एलील्स जो एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव एलील जो एक्सप्रेस नहीं होता है। इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। होमोजाइगस, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, each factors have two alleles। यदि किसी भी फैक्टर में, किसी भी फैक्टर के अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट सेम हो, इफ बोथ कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ फैक्टर आर सेम काइंड, कैपिटल टी, जीन्स के दोनों एलेली सेम है। स्मॉल टी, जीन्स के फैक्टर के दोनों एलेली सेम है। कैपिटल आर, फैक्टर के दोनों एलेली सेम है, दैट कॉल होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन को आप प्योर कंडीशन भी बोलो। हेट्रोजाइगस, देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। This is the combination of two components of allele in a factor जो सेम ना हो, डिफर, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव एलील, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव एलील, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव एलील। In this combination of alleles in a factor where both alleles are not the same kind, that is the condition called impure. Impure for what? Impure for any genetical. Different 7 contrasting traits. That is the reason. That is the reason to select the Pisum sativum plant. These 7 different traits are height का एक ट्रैक्ट लिया, सीड के 2 ट्रैक्ट्स, पोड 2 ट्रैक्ट्स, एंड फ्लावर 2 ट्रैक्ट्स। लेट्स सी। As we know, each factor have a 2 components that call allele. And allele dominant और recessive हो सकता है। हाइट में tall and dwarf, tall dominant and dwarf recessive हो गया। Seed shape and color, shape round is dominant, wrinkled is recessive. Color yellow is dominant and green is recessive. Color किसका? कलर उसके कॉटिलिडन का। पोड के 2 ट्रैक्ट्स, शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव। इन्फ्लेटेड में देखा होगा आपने, पाइसम सटाइवम की जो पोड होती है वो इस तरह से होती है, ये इन्फ्लेटेड हो गया। कॉन्स्ट्रिक्टेड में क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड के अंदर ऐसे होगा, इसे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। तो इन्फ्लेटेड ऐसे और कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसे। कलर ऑफ पोड ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। फ्लावर के 2 ट्रैक्ट्स होते हैं। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, एक्सियल इज अ डोमिनेंट, टर्मिनल इज अ रिसेसिव। कलर ऑफ द फ्लावर पर्पल is dominant and white is recessive.
These are the different 7 contrasting traits which were present in Pisum sativum plants and used in experiments by the Gregatron of one gene monohybrid cross involve inheritance of one pair of contrasting traits. क्रॉस करवाया मेंडल ने, जो क्रॉस करवाया मेंडल ने वो the cross between 2 plants of the same species Pisum sativum, right? Contrasting characters यहाँ पर 1 pair लिया जा रहा है, that's why it is called monohybrid cross. इसको monohybrid cross भी कहते हैं. Tall plant and dwarf plant के बीच में क्रॉस करवाने पर all tall plant उन्होंने लिए F1 जनरेशन में, सेल्फिंग करवाने से सेकेंड जनरेशन they have achieved. Tall plants 3/4 plants यानी कि 3 plants from out of 4 and dwarf plants 1 plants out of 4 plants, right? इस तरह से ये रिजल्ट है. इस एक्सप्रेशन को पुनेट स्क्वायर के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है. व्हाट इज पुनेट स्क्वायर मेथड? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द रिजल्ट, टू कैलकुलेट द रिजल्ट ड्यूरिंग द क्रॉस और hybridization. For the gamete formation, for the zygote formation, for the F1 and F2 progeny or possible progeny in a crossing, right? This is Punnett square, where top row में एक्सप्रेस किए जाते हैं मेल गैमेट, लेफ्ट कॉलम में फीमेल गैमेट को एक्सप्रेस करते हैं, और बीच में जो डिवाइडेशंस होते हैं दे आर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोजेनीज. प्रोजेनी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. पुनेट स्क्वायर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस और सो ऑन क्रॉस में भी एक्सप्रेस किया जाता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस पेरेंट जनरेशन कैपिटल टी हो जाएगा स्टॉल, स्मॉल टी हो जाएगा स्ट्रॉ. गैमेट फॉर्म करते हैं, सेम काइंड ऑफ गैमेट बनाते हैं. F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं दे ऑल आर एज द डोमिनेटिंग, दे ऑल आर टॉल प्लांट. एक्सप्रेसेस योर ओनली ए टॉल एलील, शॉर्ट और ड्वार्फ एलील यहां एक्सप्रेस नहीं करते. गैमेट्स परफॉर्म करते टू गेन द F2 जनरेशन. दिस मेल गैमेट, these are female gametes. फ्यूज करने के बाद प्रोजेनीज बनाते हैं. इस प्रोजेनीज के अंदर कैपिटल टी डोमिनेंट को शो कर रहा है, डोमिनेंट ट्रैक्स. दैट्स व्हाई these all are tall plants. 3 out of 4 tall and only 1 out of from 4 is dwarf. So phenotype यानी फिजिकल अपीयरेंस एक्सप्रेशन के थ्रू जो फिनोटाइप मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है, वो 3:1 मिल रहा है, 3:1. होमोजेगस टॉल फैक्टर में दोनों के दोनों एलील सेम होते हैं तो उसे होमोजेगस कहते हैं. डोमिनेंट होने की कंडीशन में होमोजेगस टॉल 1, हेटेरोजेगस टॉल एटलीस्ट 1. डोमिनेंट ट्रैक होना जरूरी है, एलील होना जरूरी है, कैपिटल टी दोनों में है. Heterozygous tall 2 and a small tt. Homozygous dwarf 1 out of 4. Like this genotype ratio comes 1:2, 2:2, 1. This is the ratio. So genotype means genetical expression of plants of their traits. That's called genotype ratio. And physical expression of any trait in a plants, that called phenotype ratio in a cross. Conclusions comes, the traits is determined by the gene or factor which occurs in a pair. जितने भी traits होते हैं वो factors के through determine किए जाते हैं. All factors are in a pair. Only one factor from the pair of factors can be present in a single gamete. जब किसी भी पैरेंटल बॉडी से गैमेट्स बनते हैं तो दोनों ही फैक्टर्स के एलील्स सेपरेट हो जाते हैं. एक गैमेट, दिस इज वन गैमेट, दिस इज अनदर, दिस इज वन गैमेट,
दिस इज वन गैमेट, अदर साइड दिस इज द अदर गैमेट। तो वन गैमेट में एक ही एलील है कैपिटल टी, और इस गैमेट के अंदर स्मॉल टी एलील है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड। इट्स आल्सो नोन एज डायहाइब्रिड क्रॉस। Involve inheritance of two pairs of contrasting tracts. First, contrasting tracts is the shape of seed of Pisum sativum, and second is color of seed of Pisum sativum. Shape round, wrinkled, color yellow green. As we know, round is dominant, wrinkled is recessive, yellow is dominant, green is recessive. So this is parental gene, parental generation. राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन के बीच में क्रॉस करवाएगा। गैमेट्स में फ्यूजन होने से F1 जनरेशन मिली, और राउंड येलो सीड प्लांट्स पाइसम sativum के मिले, उनने सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग करवाने के बाद सेकेंड जनरेशन मिली, उसमें एक वास्ट कॉन्फ़िगरेशन प्लांट्स का देखने के लिए मिला। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled yellow and wrinkled green. We can see here phenotype ratio. 9 is 3 ratio is 3 is 1. 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1. This is phenotype ratio. And the genotype ratio is 1:2, 2, S2 2, S2 4, S2 1, S2 2, S2 1, S2 2, S2 1. This is the genotype ratio. So in two gene inheritance dihybrid cross, we can see as usual is similar to the monohybrid cross. In F1 generation, we can see here only a dominant character. So that's why the all dominant, all progenies are here with their dominant tracts, right? In F2 generation, they are segregated, independently segregated. अब तक एक जीन के दो एलील साथ में थे, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थी, बट वो मिक्स नहीं हो रहे थे। बट जैसे ही F2 जनरेशन और उसके बाद आने वाले जनरेशन की बात करें, तो हर एक फैक्टर का कॉन्ट्रास्ट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है।